Hello students, today we are going to learn chapter man-made materials. Students, अभी ये जो चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं डेली लाइफ में, इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं. वी आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल्स. ओके, सी दिस इज द प्लास्टिक बॉटल. वी आर यूजिंग द प्लास्टिक रेगुलरली विच इज़ again different type of the mug. Okay, this is the plastic bucket, and again this is the brush which is made up of plastic. Again there is a different type of the plastic. We are using tiffin water bottles. Again another material that is glass, उसको जो हम लोग कांच बोलते हैं. ओके, उसमें भी अलग अलग टाइप है. This is bone china cup. Okay, this is our mobile. Upper top is made up by glass. Below cover is made up by plastic. Again this is scissor which is made up of metal and plastic. This is our utensils which is made up of metals. Again we are observing this medicinal bottle. Medicines are inside that plastic bottle. Okay, again shuttlecock. So many spoons are here. In our daily life we are using metals, glass, plastic and different type of materials. See, this is our wooden spatula. So we are using always wood in our daily life. Not only utensils, we are using the tables, chair, furniture. See, this is again made up of plastic. So different material we are using in our daily life. हमें ये ऑब्जर्व करना है कि which materials are degradable. What is mean by degradable? Degradable, it means it is naturally decomposed. Okay, non-degradable, it means which the material which is not naturally decomposed. यही हमें देखना है. So what is mean by man-made material and natural materials? Okay, so man-made material क्या होता है? The material which is made up by man, or material which is made up through the labors processing to the alter the material so that it suits envisioned purpose. Okay, for example, you know that you are observing all these things which is made up of man. And what is mean by natural material? Natural material are obtained directly from the environment. Okay, for example wood, clay. अभी हमें प्लास्टिक के बारे में सोचना है. ओके, ये जो प्लास्टिक कंटेनर्स हम लोग देख रहे हैं, अभी प्लास्टिक के जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है. सो हम लोग प्लास्टिक का यूज़ अभी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस बिकॉज इट मीन्स द प्लास्टिक मटेरियल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. वो डिकम्पोज ही नहीं होता है. सालों बाद, आफ्टर 1000 of years also it will be non biodegradable. So there are two type of the plastic which we are using regularly. First is the thermoplastic. And what is mean by thermoplastic? The plastic that can be molded as per our wish by heating. मतलब कोई भी प्लास्टिक गर्म करने के बाद हमें जिस टाइप में उसको मोल्ड करना है, उस टाइप में अगर हम लोग मोल्ड कर पाते हैं, that is called thermoplastic. See, this is the milk bag which can be melted by heating. Again this mug, bucket, plastic bottles, Bisleri bottles, water bottles which can be melted after heating and we can reuse them. और इस प्लास्टिक को गर्म करने के बाद वो मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद उसको हमें जिस शेप में चेंज करना है उसको हम लोग चेंज कर पाते हैं और नया मोल्ड दे सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. ओके, नाउ हमें अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिक देखना है विच इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक.
What is mean by thermosetting plastic? Once a specific shape is given with the help of mold, its shape cannot be changed on heating. Okay, अभी आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक स्विचेस है, ये इलेक्ट्रिक होल्डर है, दिस इज आवर मोबाइल चार्जर पिन, दिस इज आवर फ्राई पैंस हैंडल, कुकर्स हैंडल, दिस इज द टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, एक बार इस प्लास्टिक को मोल्ड करने के बाद अगर हमें इसको हीट करना है, मेल्ट करना है, दूसरा शेप में चेंज करना है, बिल्कुल नहीं हो सकता. दिस टाइप ऑफ द प्लास्टिक कैन ब्रेक बट वी कैन नॉट मोल्ड इट अगेन. गर्म करने के बाद इसका शेप हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. And why we are using the plastic containers or plastic in our daily life? Because it is durable, मतलब बहुत सालों तक चलता है. It is light in weight, easy to carry. Okay, वेट में हल्का होता है, हम लोग कहीं भी कैरी करके लेके जाते हैं. Decent in, and again it is available in different type of colors. It is less expensive, मतलब कम पैसे में हम लोग परचेस कर पाते हैं. इट डज नॉट करोड. प्लास्टिक को कोई भी एटमॉस्फेयर का, टेम्परेचर का, एयर का, वाटर का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है. इसके वजह से ये ड्यूरेबल भी है. इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द प्लास्टिक in regular life, and it is the again bad conductor of heat and electricity. That's why again it is using in electrical appliances. This is the benefits and properties of the plastic. अभी हमें प्लास्टिक के टाइप्स एंड यूजेस देखने हैं. Which type of the plastic are used for the particular things? Okay, so first polyvinyl chloride, that is called PVC. उससे क्या क्या बनता है? बॉटल्स, रेनकोट, पाइप, हैंडबैग, शूज, इलेक्ट्रिकल केबल, इंसुलेशन, फर्नीचर, रोप्स, टॉयज. जो बच्चे टॉयज खेलते हैं वो किससे बनता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड से. नाउ पॉलीस्टेरिन से क्या क्या बनता है? थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर, गियर्स ऑफ मशीन, टॉयज. प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक सीडी का कवर जो होता है, डीवीडी का कवर जो होता है, वो पॉलीस्टेरिन प्लास्टिक से बनता है. पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक जो है उससे क्या क्या बनते हैं? मिल्क बैग्स बनते हैं, प्लास्टिक बैग्स, पैकेजिंग बैग्स बनते हैं, फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप जो होता है वो बनता है. पॉलीप्रोपिलिन से क्या क्या बनता है? लाउड स्पीकर के पार्ट्स बनते हैं, व्हीकल्स, रोब्स, मैट्रेसेस, लैबोरेटरी अप्लायंसेस किससे बनते हैं? पॉलीप्रोपिलिन टाइप ऑफ प्लास्टिक के. ओके, नाउ दिस इज द ऑल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग. ओके, एंड अनदर टाइप दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच कैनॉट बी मोल्डेड आफ्टर हीटिंग. ओके, सो दैट इज फर्स्ट बैकेलाइट. बैकेलाइट से क्या क्या बनता है? कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, टीवी, टेलीफोन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस जो मैंने अभी दिखाए थे, टॉयज होते हैं कुछ बच्चों के, कवरिंग ऑफ हैंडल्स एंड कुकर्स, फ्राई पैंस, दैट इज मेड अप बाय बैकेलाइट. ओके, सेकेंड, मेलामाइन इज यूज्ड इन द कप, सॉसर, प्लेट्स, ट्रे, सम स्पेयर पार्ट्स ऑफ द एरोप्लेन इंजिन, इलेक्ट्रिक एंड साउंड इंसुलेटिंग कवरिंग्स. ओके, पॉलीयूरेथिन प्लास्टिक से क्या बनता है? सर्फिंग बोर्ड्स, स्मॉल बोर्ड्स, फर्नीचर, सीट्स इन द व्हीकल एक्सेट्रा. एंड पॉलिस्टर जो होता है वो तो थ्रेड होता है, वो हमें पता है. सो उससे फाइबर ग्लास बनती है, टोनर्स ऑफ लेजर प्रिंटर्स बनते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसका यूज किया जाता है. दिस ऑल थिंग्स आर यूज बाय थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. नाउ प्लास्टिक एनवायरमेंट में कैसे अफेक्ट करता है वो हमें देखना है. ओके, वी आर यूजिंग कैरी बैग्स एंड हम लोग वो सब कहीं भी फेंक देते हैं. जो प्लास्टिक की चीज़ें हमें नहीं चाहिए होते हैं, वो जो कंटेनर्स हम लोग फूड रैपिंग करके लाते हैं, ओके,
वो कंटेनर्स कहीं भी यूज़ होने के बाद फेंक देते हैं। जो पानी की बॉटल्स होती है वो यूज़ एंड थ्रो की होती है, लेकिन हम लोग वो रास्ते पे फेंकते हैं। और जो ऐसे मटेरियल्स जो फेंके जाते हैं, फिर उससे क्या क्या होता है प्रॉब्लम। सम मटेरियल्स आर नेचुरली डिग्रेडेड, सो दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेबल, एंड सम मटेरियल विच इज़ नॉट डिग्रेडेबल, सो दैट इज कॉल्ड नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेशन इट मीन्स डिकम्पोजिशन। जो चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती है उसे नॉन डिग्रेडेबल बोला जाता है। जो चीज़ें नेचुरली डिकम्पोज होती है उसे डिग्रेडेबल मटेरियल होता है। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। वो किसी भी पाइप में अटक जाते हैं, कैरी बैग्स, तो वाटर लॉगिंग होता है। ओके, हम लोग उसको कहीं भी फेंक देते हैं, फिर वो डंपिंग ग्राउंड में जाता है। वो बर्न होने के बाद पॉइजनस स्मोक स्प्रेड होता है, उससे सो मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पॉइजनस गैसेस से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है। अगेन पॉइजनस स्मोक जो बाहर पड़ता है उससे बहुत एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। ओके, हम प्लास्टिक का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? प्लास्टिक इज़ यूज इन अ हेल्थ केयर सेंटर। ओके, हम लोग जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ सलाइन बॉटल देखते हैं, सीरीज देखते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स देखते हैं, एम्प्यूल्स होती है, बहुत सारे मेडिसिन्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो प्लास्टिक बॉटल में फिल होते हैं, है ना। तो दिस इज द यूज ऑफ प्लास्टिक इन हेल्थ केयर सेंटर। अगेन वेजल्स आर यूज कुक द फूड, दैट इज माइक्रोवेव ओवन। बहुत सारी जो बर्तन होते हैं जो माइक्रोवेव में हम लोग यूज करते हैं फूड को गर्म करने के लिए। व्हीकल्स आर कोटेड विथ टेफलॉन कोटिंग। हम लोग कोई भी व्हीकल अगर बुक करते हैं, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, तो उसको टेफलॉन कोटिंग ही होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्क्रैचेस। कोई कुछ एक्सीडेंट हो गया, कहीं रफ हो गई हमारी गाड़ी, तो वो स्क्रैचेस से बचाने के लिए टेफलॉन कोटिंग किया जाता है। ओके, टेफलॉन इज द टाइप ऑफ प्लास्टिक। दिस इज अगेन comes for the fill in the blanks. Okay, there are more than 2000 different type of the plastics. Some type of the plastic are used in assembling some parts of aeroplane. एरोप्लेन में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ होता है। हम लोग सीट्स देखते हैं, हैंडल्स देखते हैं, ऊपर का लगेज रखने का जो कैबिनेट होता है उसमें यूज़ होता है। Again, polyacrylic is a type of plastic which is used manufacturing the lenses and artificial teeth. हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, रूट कैनल करते हैं, उसके बाद में आर्टिफिशियल टीथ बिठाया जाता है, तो दैट इज़ द मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ओके, दैट इज़ पॉलीएक्रेलिक प्लास्टिक। लेंसेज वी आर यूजिंग, जो स्पेक्टेकल्स होते हैं, गॉगल्स होते हैं। ओके, सो दैट इज़ अगेन मेड अप ऑफ पॉलीएक्रेलिक प्लास्टिक। ओके, अभी हमें क्या देखना है, कौन सी चीज़ें डिकम्पोज होती है कितने दिनों में। वेजिटेबल्स डिकम्पोज इन 1 to 2 weeks, it means that is degradable. Cotton cloth which decompose in a year, that is again degradable material. Wood that is decomposed in 10 to 15 years, so that is again degradable. But plastic थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद में भी डिकम्पोज नहीं होता है, दैट्स वाई इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हाट इज मीन बाय डिकम्पोजिशन? कोई भी चीज सॉइल में जाने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज करते हैं, उसकी मिट्टी बना देते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक material, so that process is called decomposition. और हमें रेगुलरली क्या याद रखना है अभी? So each responsible citizen should follow 4R principle. What is mean by 4R principle? That is reduce. हमें पता है जिसका एडवांटेज कम और डिसएडवांटेज ज़्यादा है, प्लास्टिक का डिसएडवांटेज ही ज़्यादा है, सो उसका हमें क्या करना है, मिनिमल यूज करना है, कम से कम यूज करना है। सेकेंड है रीयूज। रीयूज मतलब यूज इट अगेन। कौन से टाइप का प्लास्टिक हमें यूज करना है? जो हम लोग वॉश करके वापस यूज कर सकते हैं। अगर कुछ स्क्रैप प्लास्टिक है उसको क्या किया जाता है, फिर जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है, प्लास्टिक के
मिल्क बैग्स होते हैं, वाटर बॉटल्स होती है जो हम लोग थ्रो कर देते हैं, फिर दूसरे लोग उसको कलेक्ट करके कोई भी एक मिल में डाल के उसको क्रश किया जाता है। ओके, क्रश करने के बाद मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद उसका रीयूज किया जाता है किसी भी न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। ओके, फिर उसके टेबल्स, चेयर, फर्नीचर बनाया जाता है। सो दैट इज अगेन रीयूज। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग प्रोसेस। इट मीन्स यूज अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। अभी हमें पता भी चला है कि जो प्लास्टिक यूज करने के बाद हम लोग जो फेंक देते हैं उसको मेल्ट करके उसमें टार में मिक्स करते हैं, मतलब जो डांबर हम लोग बोलते हैं, डांबर बोलतो आपण त्याला, त्या डांबरमध्ये मिक्स करून, रेतीमध्ये मिक्स करून नवीन रोड बनवण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो। ओके, दॅट इज द रिसायकलिंग प्रोसेस। आणि ते जे रोड बनवलेले असतात ते लॉंग टर्मचे रोड असतात, त्याला खड्डे पडत नाहीत, त्याला क्रॅक्स पण जात नाही। सो दॅट इज कॉल्ड द रिसायकलिंग process. It means use again after processing. And fourth principle, that is recover. It means reclaiming. What is mean by reclaiming? The waste plastic is converted back into its starting chemicals, which can be processed back into the fresh plastic. Okay, again that is waste plastic can also be burnt in a place of fossil fuel as a part of energy recovering. So these four are principle: reduce, reuse, recycle and recover. Whenever we follow these four are principles, then only we can save the environment from the pollution. ना अभी ये हम लोग कंटेनर देख रहे हैं, इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, बाहर से पार्सल लेके आते हैं फूड का, जो बहुत गर्म होता है। इस प्लास्टिक कंटेनर में अगर गर्म फूड डालते हैं, ये प्लास्टिक कंटेनर अभी कड़क लगता है लेकिन हार्ड होता है, लेकिन जैसे ही गर्म फूड हम लोग फिल करते हैं वो सॉफ्ट बन जाता है। एक हमें याद रखना है, हम लोग अगर कहीं से भी पार्सल लेके आएंगे हॉट फूड का, तो तुरंत घर में आने के बाद हमें कंटेनर से वो फूड निकाल के हमारे स्टील के या मेटल के वेजल में रखना है। नहीं तो ये जो प्लास्टिक है इसकी जो वो क्या होता है, मेल्ट होता है और वही हमारे फूड में चला जाता है और वही हम लोग खाते हैं। दैट इज द स्लो पॉइजन विच अफेक्ट हेल्थ। और अभी हमें प्लास्टिक के बेनिफिट्स और लॉसेस पता चल गए हैं। सो दैट्स वाई यही हमें डिसाइड करना है कि हमें प्लास्टिक का यूज डेली लाइफ में कितना करना है या नहीं करना है। ओके, I hope you clearly understand it. In our next video हम लोग थर्माकोल के बारे में जानकारी लेंगे। Thank you.